Good morning, friend. We are discussing about the Visa Nice 5 question. Let's discuss the first question. First question is related to the polity section, in which they are asking about the Union Territory of Delhi. If you are talking about the Union Territory of Delhi, there is NCR region that is under the Union Territory of Delhi. There is 2 or 3 constitutional amendments that are directly related to the Delhi. For example, 70th constitutional amendment, which added the elected member of the Legislative Assembly to the Electoral College of the President. First amendment is that. Second amendment, that is 69th constitutional amendment itself is governed like that. It gives the power to make legislative assemblies, right? And number third amendment that is associated with it is related to the 93rd constitutional amendment, in which they are saying that the 10% of the council of minister member can become the minister there. Council of minister can become the minister, right? Minister of the different department. Let's see the question. Number first, the chief minister is appointed by the lieutenant governor. Is it? Number second, the legislative assembly can make laws on all the matter of the state list. Number third, the strength of the council of ministers is fixed at 15% of the total strength of the assembly. And your option is this. And you have to choose the not correct. Not correct पूछा गया आपसे first and third, first second none. Again repeat the question. आपसे पूछा जा रहा है कि आप यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली के बारे में कुछ आप बातें बताइए जो करेक्ट है. पहली स्टेटमेंट बोल रही है जो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने वाला जो पर्सन है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आप जिसको बोलते हैं. सेकंड की बात करें जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो जो है हर एक मैटर जो स्टेट लिस्ट में आता है. कितने सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट में? आई थिंक 52 सब्जेक्ट है. आई थिंक सो 52. यस. द स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज फिक्स्ड एट 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली. तो क्या ये ऐसा पॉसिबल है? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. You have to choose the not correct there. Let's see the next question that is related to geography, basically the earthquake. Regarding the earthquake, if you are talking about the earthquake is nothing but a type of energy when liberated because of the tectonic plate, and tectonic activities is happening inside the earth crust, and the wave that are coming from all these can create a huge havoc at the surface, and that they have a 2 or 3 type of waves. For example, P wave, primary wave, secondary wave, and love wave, that also known as the body wave, and they are at the shallowest level and has a high impact on us and the life and infrastructure of the country. Which of the following statement are regarding correct about the earthquake? First statement is said like that: the point where energy is released during the earthquake is called a hypocenter. The point, for example, there is an earthquake, there is a earthquake is happening inside the earth. The point where energy is released, उसको हम hypocenter बोलते हैं. Number second, all the earthquake take place in asthenosphere. एंड योर ऑप्शन इज दिस. फर्स्ट सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नीदर वन नीदर टू. अगैन फिर द क्वेश्चन. आपको बताना है कि अर्थक्वेक के बारे में 2 स्टेटमेंट दे रखे जो बोलती है कि जहाँ पे एनर्जी निकलती है उसको हम हाइपोसेंटर बोलते हैं. जो भी अर्थक्वेक आता है वो सिर्फ एस्थेनोजोफेयर में आता है. हर एक अर्थक्वेक जो एस्थेनोजोफेयर में ही आता है. तो आपको ये बताना है व्हाट डू मीन बाय द एस्थेनोजोफेयर. एस्थेनोजोफेयर कुछ नहीं होता है बल्कि जो आपका ये नीचे कोर है, देन है आपका मेंटल है, देन आपका क्रस्ट है. क्रस्ट एंड अपर मेंटल को मिला के आपका एस्थेनोजोफेयर और लिथोस्फेयर बनता है. तो उस लिथोस्फेयर से थोड़ा सा नीचे एस्थेनोजोफेयर बनता है. तो वही आपका एस्थेनोजोफेयर है. यहाँ पे प्लास्टिक मटेरियल भी पाया जाता है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट is related to the history. First statement is regarding is Lord Macaulay. Lord Macaulay headed the first law commission to codify the Indian law. Is it? Second, Charles Woods proposed downward filtration theory for the education of Indian. ये 1854 में लेकर आया गया था. तो Charles Wood proposed downward filtration theory for the education of Indians. It means that the some people from the Indian community should be educated, and if they become the educated, they make other people to educate children. नंबर थर्ड, विलियम बेंटिंग जिनका कार्यकाल था 1829 to 1935 was the Governor General of Indian during the enactment of the Female Infanticide Prevention Act. And your option is फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड. आई कैन रिपीट द क्वेश्चन. आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है. पहले मैं बोला कि जो लॉर्ड मकाले थे उन्होंने फर्स्ट लॉ कमीशन को हेड किया था, और जो भी इंडियन लॉज थे इन द फॉर्म ऑफ द हिंदू एक्ट और द मुस्लिम एक्ट एंड अदर रिलीजन एक्ट में इनको कोडिफाई किया गया था. सेकेंड स्टेटमेंट में बोला कि जो लॉर्ड चार्ल्स वुड्स डिस्पैच उसने प्रपोज किया था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को, जिसमें एजुकेशन ऑफ इंडियन की बात की गई थी, मास एजुकेशन. नंबर थर्ड, विलियम बेंटिक ने जो है गवर्नर जनरल थे जब हमारा फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट पास किया गया था. एंड आपको सही ऑप्शन यहाँ पे चुनना है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. नंबर फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द लैफर कर्व. सी यू हैव टू रिमेंबर 3 कर्व. कुजनेट कर्व, सेकेंड कर्व इज रिलेटेड टू द लैफर कर्व, नंबर थर्ड कर्व इज द लॉरेंज कर्व एंड गिनी कोफिशिएंट वाला कर्व. लेट्स सी द क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द लैफर कर्व, टैक्स रेवेन्यू ऑलवेज इंक्रीज विद इंक्रीज इन टैक्स रेट. तो फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ टैक्स रेवेन्यू, there is a tax rate. If the tax rate increasing, तो tax revenue always be increasing. Second, हाँ, Phillips curve.
Phillips curve exists in inverse relationship between the unemployment and the rate of inflation. It means that if the rate of inflation is high, the unemployment found in the country is low. Number third, Lorentz curve. Lorentz curve is a graph showing the degree of inequality in income in given population or an economy. If you wanted to show the inequality in the population, then you have go for the Lorentz curve. Second, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, you have to choose the correct option from the given option. फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपके सामने ऑप्शन रहे हैं. मैं अगेन दोबारा रिपीट कर रही हूँ. अकॉर्डिंग टू द लेफर कर्व, टैक्स रेवेन्यू ऑलवेज इंक्रीज विद इंक्रीज इन टैक्स रेट. तो सेकंड में बोला गया जो फिलिप्स कर्व है, अगर आपका इस तरीके का रिलेशनशिप को शो करता है, अगर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम होगी. नंबर थर्ड की बात करें, लॉरेंज कर्व जो है ग्राफ शोइंग द डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी शोइंग इनइक्वालिटी. तो ये जो पॉपुलेशन की इनइक्वालिटी को शो करने की कोशिश की जाती है यहाँ पे. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फ्रॉम द क्वेश्चन. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग येट टू गेट द ज्योग्राफिकल जे टैग. मतलब अभी तक इनको जे टैग नहीं मिला. कौन कौन सा ऐसा है? तो कश्मीर सैफरन, कश्मीरी कानी शॉल, कश्मीर पश्मीना. सी कश्मीरी सैफरन, कश्मीर कानी शॉल, कश्मीरी पश्मीना. तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा जीआई टैग किसको नहीं मिला है. सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड नन. अगैन फिर द क्वेश्चन. जीआई टैग की बात करिए तो ये देता कौन है? ये देता है आपका जीआई टैग. हाँ, देता कौन है? सी मिनिस्ट्री. आई डोंट फॉरगेट दिस थिंग्स. एनीवे, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ट्रिप्स के एग्रीमेंट के हिसाब से इसको दिया जाता है. ट्रिप्स एग्रीमेंट ऑफ WTO ऑफ 1999. एंड हमारी कंट्री में जो सबसे पहले जो इंडिकेशन दिया गया था वो दार्जिलिंग टी को दिया गया. कब दिया गया? 2004-2005 के टाइम पे दिया गया था. एंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन. तो कश्मीरी सैफरन, कश्मीरी शानी शॉल, कश्मीरी पश्मीना. तो आपके सामने ये ऑप्शन है और आप चूज़ कर सकते हैं इनमें से किसको जो है जीआई टैग नहीं मिला है. फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली. तो इनमें से बताना था कौन सा इनकरेक्ट है. इनकरेक्ट की बात करें तो जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं सारे के सारे इनकरेक्ट है. चीफ मिनिस्टर द पॉइंट बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये जो काम करता है, ये काम जो करता है प्रेसिडेंट करते हैं. तो फर्स्ट इज रॉन्ग. सेकंड, द लेजिस्लेटिव असेंबली कैन मेक लॉ ऑन ऑल द मैटर. नहीं, ये जो है स्टेट लिस्ट के हर एक सब्जेक्ट पे लॉ नहीं बना सकते हैं. केजरीवाल जी रोते रहते हैं कि उनके पास पुलिस नहीं है, उनके पास लैंड से रिलेटेड प्रोविजंस नहीं है. वन मोर सब्जेक्ट इज नॉट देयर. इवन पुलिस नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, एंड लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड वो कानून नहीं बना सकते हैं. थर्ड की बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर. मैंने आपको 10% ही बताया था. तो 15% राज्यों के लिए, 10% हमारी यूनियन टेरिटरी दिल्ली के लिए. तो ये रहा आपके सामने. As per the Chief Minister of Delhi is appointed by the President, not the Lieutenant Governor. Second is not correct because the Assembly can make laws on all matters of the state and concurrently accept the state list. तो पब्लिक ऑर्डर नहीं आएगा, पुलिस नहीं आएगा, एंड लैंड से रिलेटेड मैटर नहीं आता है उनके पास. नंबर थर्ड की बात करें तो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ जो है फिक्स की गई थी स्ट्रेंथ 10% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. मैंने 93 बोला होगा शायद, वो गलत है. वो आपके स्टेट के लिए लागू होता है, लेकिन आपकी दिल्ली के लिए जो है 10% जो है टोटल स्ट्रेंथ दिया गया है 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ. और जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बनी थी वो थी शीला दीक्षित. नहीं, शीला दीक्षित से सुषमा स्वराज. रियली सॉरी. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द अर्थक्वेक. द पॉइंट वेयर एनर्जी ड्यूरिंग द अर्थक्वेक इज हाइपोसेंट्रिक. दैट इज करेक्ट. ऑल द अर्थक्वेक टेक प्लेस इन द अर्थ सर्फेस. ये गलत हो जाएगा. लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. फर्स्ट इज करेक्ट बिकॉज द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड द फोकस. और जो मिनिमम टाइम में एनर्जी पहुँच पाती है, मैक्सिमम सी जो मिनिमम डिस्टेंस होता है हाइपोसेंटर से जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है टू द अर्थ सर्फेस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द वेयर एनर्जी एंड वेयर द एनर्जी इज रीचिंग. तो मिनिमम डिस्टेंस व्हेन दे आर कवरिंग दैट इज नोन एज एपिसेंटर. उसको एपिसेंटर बोला जाता है. Second is not correct because all natural earthquake take place in the lithosphere, which is the part of the earth crust, uppermost solid part of the mantle, not the asthenosphere. तो यहाँ पे आप ये याद रख सकते हैं पॉइंट को. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. लॉर्ड मैकॉले ने हेड किया था लॉ कमीशन. ये बिल्कुल सही है. 4 वुड डिस्पेंसिंग डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी को जो है प्रोपाउंड किया था, ये भी सही है. लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट पास किया गया था. तो ये गलत है. आई थिंक सेकंड भी गलत वो दे रखा है इन्होंने. लेट्स सी द थिंग. लॉर्ड मैकॉले ने फर्स्ट लॉ कमीशन हेड किया, ये सही है. सेकंड की बात करें तो 4 वो डिस्प्ले रिजेक्ट किया था उन्होंने थ्योरी को कि ग्रेट रिस्पॉन्सिबल. मतलब क्या कि उनका ये मानना था कि गवर्नमेंट को खुद से कोशिश करनी चाहिए कि जो एजुकेशन वो स्प्रेड हो. थर्ड की बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिंग एंड वॉरेन हेस्टिंग ने इन्फोर्स किया था रेगुलेशन रिगार्डिंग फीमेल इन्फेंटिसाइड स्टर्नली. बट इनैक्टमेंट जो है फीमेल इन्फेंटिसाइड का 1870 के टाइम पे ही हो गया था. लॉर्ड मायो वाज द वाइसरॉय. द ऑफिस गवर्नर जनरल ऑफिस हैड बिकम ऑब्सोलीट. राइट. 1870s में जो है लागू ढंग से किया गया था एक्ट के थ्रू. 1870 के एक्ट के थ्रू इसको जो है अबॉलिश किया गया था बेसिकली. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. मेरे हिसाब से फर्स्ट इज कम्प्लीटली इनकरेक्ट आ जाएगा. तो सेकंड एंड थर्ड सही है. ओके. लेफर कर रिप्रेजेंट सी लेफर कर की मैं वैसे ही बात कर लेंगे. लेफर कर क्या होता है? टैक्स रेट होगा एंड रेवेन्यू. जब रेवेन्यू बढ़ता है तो टैक्स रेट बढ़ता रहता है, उसके पास कलेक्शन भी बढ़ता रहता है. लेकिन फिर एक टाइम के बाद एक सेचुरेशन आ जाता है क्योंकि इनकम एक सेचुरेशन के बाद नहीं बढ़ पाती है, फिर कम होना स्टार्ट हो जाता है अगर टैक्स रेट बहुत ज़्यादा होती है. तो फर्स्ट गलत हो जाएगा. बात करें फिलिप्स कर की, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन की रेट कम ही होनी चाहिए.
मतलब ये इन्वर्स रिलेशनशिप शो करता है। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट लगते हैं आप, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, आप रेट ऑफ इन्फ्लेशन यहाँ पे रखिए, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ता है तो क्या फिलिप्स कर्व के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा? ये नहीं, अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट घटता है। नंबर इस तरीके से याद रखिए। लोरेंज कर्व की बात करिए, जो है डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी शो करता है किसी भी पॉपुलेशन के इकोनॉमी के टर्म्स में, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट येट टू गिव अ जीआई टैग। तो कश्मीरी शेफरन को दिया जा चुका है, तो फर्स्ट तो नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा। तो सेकंड पश्मीना शॉल एंड कानी शॉल को दिया जा चुका है। लेट्स सी जीआई टैग साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट दैट हैव स्पेशल जियोग्राफिकल ओरिजिन एंड पोजेस क्वालिटी ऑफ दैट रेपुटेशन दैट आर एबल टू डेट ऑफ रीजन। मतलब क्या कि जिस जहाँ से वो ओरिजिन हुई है उसी से ही रिलेटेड, उसी वहीं पे ही कल्टीवेट की जाती है, उस वजह से उस कम्युनिटी को फ़ायदा देना जिसने इस चीज़ का आविष्कार किया। तो ये मेन एम रखते हैं जीआई टैग का। दीज आर रेगुलेटेड इन द जियोग्राफिकल इंडिकेटर ऑफ गुड्स एंड रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट of 1919 and given the Controller General of Patent Design and Trademark who is Registrar of the GI। रिसेंटली बात न्यूज़ में क्यों था कि कश्मीरी सेफ्रन को जो है जीआई टैग मिला गया था, जीआई टैग दिया गया था। द अदर टू प्रोडक्ट वर ग्रांटेड द जीआई टैग मच अर्लियर, जो दैट इज द कानी शॉल एंड द पश्मीना शॉल ऑफ द कश्मीर। Okay, let's see the revisionary part. Revisionary part is nothing but a Sputnik 5 or COVID-19 vaccine approval for the emergency use in India। तो क्या है स्पुतनिक 5 पहले ये जानते हैं, फिर न्यूज़ में देखते हैं क्या जानते हैं, फिर इसकी एफिकेसी की बात करते हैं। ओके, बात करते हैं स्पुतनिक 5 की। स्पुतनिक 5 जो है एक ऑल्सो नोन एज द जैम कोविड वैक्सीन इसको बोला जाता है। स्पुतनिक 5 जो वर्ल्ड फर्स्ट रजिस्टर्ड वैक्सीन रही है हमारे सामने। नंबर थर्ड बात करते हैं, ये जो है डेवलप की गई है कमालिया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ऑफ द मॉस्को इन रशिया। तो ये रशिया के द्वारा बनाई गई कौन सा इंस्टीट्यूशन? तो कमालिया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट नहीं है। द वैक्सीन नेम किया गया आफ्टर द फर्स्ट सोवियत जो सैटेलाइट है, स्पेस सैटेलाइट उन्होंने स्पुतनिक फर्स्ट छोड़ी गई थी, उसके नाम के तर्ज पे उन्होंने जो है इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाया एंड इट मेक्स इट एज एन इम्पॉर्टेंट फॉर द रशिया एंड मेड द फर्स्ट रजिस्टर्ड वैक्सीन रिगार्डिंग कोविड-19। तो बात करते हैं न्यूज़ में क्या है, क्योंकि जो ड्रग एंड कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया यूज ऑफ स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाय द रशिया। इट इज़ नाउ द थर्ड कोरोना वायरस वैक्सीन टू गेट द इमरजेंसी यूज अप्रूवल। तो पहले कौन कौन सी है? कोविशील्ड है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, कोवैक्सीन है भारत बायोटेक बना रहा है, और थर्ड जो ये है आपकी स्पुतनिक 5। इंडिया हैज़ क्लोज मोर देन 13.5 मिलियन कोरोना केसेज एंड इज ओनली बिहाइंड द यूएसए विच वाज रिपोर्टेड मोर देन 31 मिलियन के। तो ये है कि हमारे जो केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इमरजेंसी केसेस पे हमने इसको अलाउ किया है कि हम यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी एफिकेसी की। इट रजिस्टर्ड इन 60 कंट्री अप्रूव्ड यूज़ इन ओवर 55 कंट्री। मतलब क्या कि 60 कंट्री ने बोला था कि हम इसको यूज़ करेंगे, लेकिन 55 कंट्री ने अप्रूव कर दिया कि हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द 3 वैक्सीन द वर्ल्ड विद एफिकेसी ऑफ ओवर 90%। और जो लैंडसन फाउंड इज एन एफिकेसी ऑफ 91.6%। मतलब इसकी एफिकेसी ओवर 90%, 90% से ज़्यादा इसकी एफिकेसी है। इसको स्टोर करने की कंडीशन यहाँ पे ज़्यादा है, -18 डिग्री सेल लिक्विड पे इसको स्टोर किया जाना होता है, -2 से लेकर 8 डिग्री फ्रीज ड्राइड फॉर्म में इसको स्टोर करना होता है। ये सबसे अच्छी बात इसकी है कि ईजी टू डिस्ट्रीब्यूट वर्ल्ड वाइड इवन इन द रिमोटेस्ट एरिया। ओके, एज ग्रुप यूजफुल फॉर द ओल्ड एज ग्रुप, ये इसकी एक खासियत है, इंक्लूडिंग ओल्डर देन 60 ईयर। तो हाउ डज इट वर्क, किस तरीके से काम करता है, यू कैन सी है। बेस्ड ऑन द ह्यूमन एडेनोवायरस वेक्टर्स बेस्ड टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया गया, यूज टू डिफरेंट टाइप ऑफ एडेनोवायरस वेक्टर। एडेनोवायरस आर कॉमन कोल्ड वायरस इन ह्यूमन, दे आर मोस्टली कॉमन यूज इन इंजीनियर वेक्टर। वेक्टर इज अ वायरस दैट लैक्स अ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन स्टॉप रेप्लिकेशन। मतलब क्या कि वायरस के पास क्या नहीं होता, वो एक ऐसा जीन नहीं पाया जाता जो रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प होता है, ठीक है। तो वो जो है होस्ट सेल का जो रिप्रोडक्शन की मशीनरी है वो यूज़ करता है एंड रिप्रोड्यूस होता है। और इसमें हमने जो कोल्ड वायरस है, दैट इज़ नोन एज एडेनो वायरस, उसका यूज़ किया गया है वेक्टर को रेप्लिकेट करने के लिए, ताकि एक एंटीबॉडीज हमारे सेल्स में बनाया जा सके, ठीक है। वेक्टर आर यूज एज अ व्हीकल टू गेट इंड्यूस जेनेटिक मटेरियल। मतलब वेक्टर को यूज़ क्यों किया जाता है, ताकि जेनेटिक मटेरियल जो है वायरस में या फिर हमारी बॉडी में डाला जा सके फ्रॉम अनदर वायरस into the cell. The gene from adenovirus which causes the infection is removed while the gene coding। तो SARS-CoV-2 को जो है वो रिमूव कर देता है, जो हम दोबारा अपने खुद से बनाया हुआ वायरस डाल रहे हैं। दिस इंसर्टेड एलिमेंट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, और जो ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे जो हमने इंसर्ट किया, विच प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन। तो ये इसकी मेन खासियत है। बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस की। द यूज़ ऑफ द ह्यूमन एडेनोवायरस एज वेक्टर से बिकॉज दीज वायरस आर नॉट नोवल। तो पहली बात तो ये है कि नए नहीं है, ना ही कोरोना वायरस के फैमिली से रिलेट करते हैं, और ये ईजी टू मतलब क्योर है। कोविशील्ड की बात करें तो द ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेन का वैक्सीन बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑल्सो यूज एडेनोवायरस वेक्टर टेक्नोलॉजी। तो यही सेम टेक्नोलॉजी जो सीरम इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट एंड बायोटेक इंस्टीट्यूट जो है वैक्सीन बना रहा है, तो वो भी सेम ही वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। बट द यूज ऑफ द 2 वेक्टर प्लेटफॉर्म इज यूनिक टेक्नोलॉजी, बट जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, द वे दे आर यूजिंग इज डिफरेंट, मेकिंग द स्पुतनिक, जिसकी वजह से स्पुतनिक डिफरेंट हो जाता है कोविड-19 अदर वैक्सीन से, जो ग्लोबली ऑल्दो एडेनोवायरस वेक्टर को ही यूज़ करी है। जो 2 वैक्सीन की डोज देनी होती है वो 21 दिन बाद देनी होती है, और
इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में भी इसको 14 से 15 दिन दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने वैक्सीन ले लिया तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अगले ही दिन, ऐसा नहीं है। बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट रेंजेस ऑफ द फॉरेस्ट की। बात करते हैं सबसे पहले हमारे नॉर्दर्न पार्ट की। तो एक कर्नाटका काराकोरम है, देन है लद्दाख, देन है जास्कर, देन पीर पंजाला, देन धौलीधर रेंज है। तो ये हो गया आपका नॉर्थ की। साउथ में चलते हैं, नहीं हम इसमें चलते हैं। गारो, खासी, जयंती हिल, ये याद रखना। मीज़ो हिल यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे डाफला हिल है, मिशमी हिल है, एंड तो ये आप सब याद रखना। बात करते हैं हम जो मध्य वाला भारत है, मध्य भारत, दैट इज़ द मालडा रेंज, विंध्या रेंज, कैमूर रेंज एंड हजारीबाग रेंज। सतपुरा रेंज है, रामगढ़ माउंटेन है। देखो ये जो लाइन में बताने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सतमला हिल, ग्वालीगढ़ हिल, डंडेवाला हिल एंड कारगढ़ एंड माउंटेन। नेक्स्ट है हरीशचंद्र हिल, बालघाट रेंज, एंड ये आप याद रखना। तो इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मंडवा रेंजेस हैं, विंध्या माउंटेन है, कैमूर माउंटेन है और हजारीबाग माउंटेन है। ठीक है, ये मलवा प्लेट्यू भी आप याद रखना। सतपुरा रेंज है यहाँ पे और सतमाला माउंटेन रेंज यहाँ पे है। हरीशचंद्र रेंज नीचे आती है, उसके साथ ही बालघाट रेंज है, ग्वालीघाट रेंज उससे थोड़ी सी ऊपर है। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये वाली रेंज पता होनी चाहिए जहाँ से हमारी रिवर वगैरह निकलती है। जैसे अमरकंटक हो गया, अमरकंटक कौन से प्लेट्यू में पड़ता है, तो ये पता होना चाहिए। ओके, लेट्स सी द यहाँ पे साउथ में चलते हैं। साउथ की बात करें तो यहाँ पे नल्ला मल्ला हिल है, जवदी हिल आता है, देन अन्नामलाई, शिवरोय है, कार्डामम हिल। डोडा बेट्टा यहाँ जो है वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक मानी जाती है। बाय दिस वी आर एंडिंग द सेशन।